My dear and loving students, hello, how are you all? Hope all of you are fine and doing your studies properly and on regular basis. Keep on watching the recorded videos 2 or 3 times so that the topic will be very clear to you. Today I am going to take your grammar lecture from your ACE grammar book of standard 4th. The chapter which we are going to do is chapter number 17, that is subject verb agreement. So to start this chapter, first we have to revise the earlier chapter, which was that, yes, it was chapter number 16 about modal verbs. So modal, what they do? Modal verbs help modify the meaning of the main verb and they combine with the main verb to show possibility, ability, permission, necessity, duty, habit and so on. तो वो हम क्या यूज़ करके कर सकते हैं? मेन वर्ब प्लस कैन, मे, शुड, मस्ट. Today we are going to study how subject and verb agrees with it and then properly how the sentence are formed. So let's get started with chapter number 17, that is subject verb agreement. Now let's read the sentences. The window is open. Here the subject is window and verb is open. The leaves are green. So leaves, they are subject, means noun, and here you have to see singular verb was, singular subject was there, so verb was singular. Here the subject means noun is plural, so plural verb is used. I am hungry. So I is a singular, so singular verb am is used. The books were on the table. So here books plural form is there, so the verb were is used. The school has a library. So school is a singular noun, that's why singular verb has is used here. She plays in the park. So here what is there? She is the singular pronoun, इसलिए singular verb plays is used in this sentence. Now Rohit does not eat sandwiches. तो रोहित also is the singular subject noun, तो इसलिए उसके साथ singular verb does not eat is used. Do you play cricket? तो here I and you are exceptional case, वो singular और plural दोनों में they take the plural verb. तो I और you के साथ हमेशा plural verb ही लगेगा. That's why do is used over here. Now let's understand all these sentences still in detail. So here it is given. The words in bold show the verbs. तो कौन कौन से verbs थे? Is, are, am, were, has, plays, does not and do. All these were verbs. And in the sentence they must agree with the subject. तो subject क्या क्या थे? Window, leaves, I, books, school, she, Rohit and you. So these were the subjects. तो उनके साथ उनको एग्री होना पड़ेगा. इट मीन्स दैट सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने आपको समझाया ही कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स. सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब.
अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लिखेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। कैसे? वी यूज़ इज़ व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। हमने पहले सेंटेंस में देखा कि विंडो एक ही था, सो इज़ वॉज यूज्ड इन द सेंटेंस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। एंड आर व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल। तो लीव्स प्लूरल था, इसलिए प्लूरल वर्ब आर लगाया हमने उसके साथ। वी यूज़ एम विद द प्रोनाउन आई। तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम। तो दैट एम वी हैव यूज्ड। एंड आर विद द प्रोनाउन यू। और हमने सीखा ही है इन आवर चैप्टर नंबर 12 वर्ब्स कि आई एंड यू will always take the plural form. Now in these sentences, see, the lion is in the den. So here the subject lion, it is in singular form, that's why the verb will also come in singular. The buildings are tall. So here buildings, so many buildings are there, plural subject is there, that's why verb will also come plural are. The buildings are tall. I pronoun is singular, so verb will also come singular am. I am tired. Singular subject के साथ singular verb I am tired. You are Nakul's cousin, aren't you? तो यू में हमने सीखा ही है यू विल ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। सो आएगा यू आर नकुल्स कजिन आरंट यू। क्या आप नकुल के कजिन हो ना? ही इज़ आस्किंग क्या आरंट यू। सो यू विल ऑलवेज टेक द प्लूरल वर्ब। वी यूज़ इज एम आर इन द प्रेजेंट टेंस। हम इज एम आर प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। नाउ आवर सेकेंड पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर इज वी यूज़ वॉज व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वर व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर वर्ब के साथ लगाएंगे और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब प्लूरल विल यूज़। मगर ये कब लगेगा? व्हेन द सब्जेक्ट्स आर इन पास्ट टेंस। वी यूज़ वॉज विद द प्रोनाउन एंड वर विद द प्रोनाउन यू। आई के साथ वॉज लगेगा और प्रोनाउन यू के साथ वर लगेगा इन द पास्ट टेंस सेंटेंस। अब हम पास्ट टेंस के सेंटेंस रीड कर लेते हैं। द बॉल वॉज बिहाइंड द डोर। तो हियर द सब्जेक्ट बॉल सिंगुलर है, पास्ट टेंस में है, सो वॉज। द बॉल वॉज बिहाइंड द डोर। द एप्पल्स दे आर इन प्लूरल फॉर्म, सो नेचुरली वर विल कम। The apples were on the plate. I was unwell yesterday. I के साथ हमेशा was verb लगेगा। I was unwell yesterday. Past tense है, कल मैं था। You were late for the class on Friday. You will always take the plural verb, so were. You were late for the class on Friday. फ्राइडे को वो लेट था, पास्ट टेंस इज देयर। नाउ ये आपको याद रखना है, वी यूज़ वॉज एंड वेयर इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम वॉज और वेयर का यूज़ करेंगे। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट, दैट इज थर्ड वन। वी यूज़ हैज़ व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर।
हम हैज़ का यूज़ कब करेंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और हैव व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल। हैज़ के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और हैव के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। वी यूज़ हैव विद द प्रोनाउन आई और यू, और आई और यू दोनों के साथ हैव ही लगेगा। वो एक्सेप्शनल केस है, इसलिए आई और यू बोथ विल टेक हैव सब्जेक्ट, हैव वर्ब। नाउ मोहित, only one person, one subject is there, so has will come. Mohit has a goldfish. Mohit has a goldfish. The windows, plural is there, so the plural verb have. The windows have curtains. The windows have curtains. I के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा, तो I have an old book. I have an old book. You के साथ भी प्लूरल वर्ब लगेगा, You have many toys. You have many toys. Now see, we use has and have to show possession in the present tense. तो हम हैज़ और हैव का यूज़ पोसेशन, उसकी बिलोंगिंग दिलाने के लिए यूज़ करते हैं। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। हैज़ और हैव का यूज़ प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा, और पास्ट टेंस में हम यूज़ करेंगे तो हैड आएगा। बोथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हैड लगेगा। नाउ अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज़ होगा? लेट्स सी। सिंगुलर सब्जेक्ट आर रिटन एज बेस वर्ब प्लस एस। जो भी सिंगुलर होगा उसके साथ जो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड है, उसके साथ एस या ई एस लगेगा। अगर राइट है तो राइट्स आएगा, वॉक है तो वॉक्स। तो जो मेन एक्शन वर्ड है उसके साथ एस या ई एस लगा के हम सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो उसके साथ क्या आएगा? वॉचिस, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। ही वॉचिस द फुटबॉल मैच, जिसमें ई एस लगता है वर्ब के अंदर, वो सिंगुलर होता है। ही वॉचिस द फुटबॉल मैच। रूही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब रन्स विल कम। रूही रन्स अ रेस। प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड द प्रोनाउन आई एंड यू आर रिटन यूजिंग द बेस वर्ब। तो प्लूरल के साथ खाली जो मेन एक्शन वर्ड होता है वही लगेगा, उसके साथ एस और ई एस बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जो मेन एक्शन वर्ड होगा वही लिखेंगे। दे प्लूरल है तो क्या आएगा? सी, एक्शन वर्ड है ना सी, सो इट विल कम सी। दे सी द हिप्पो। आई के साथ भी प्लूरल लगता है, सो आई फ्लाई अ काइट। यू के साथ भी प्लूरल आएगा तो यू शेयर योर बुक्स विथ निखिल। यू शेयर योर बुक्स विथ निखिल। ये प्रेजेंट टेंस का हुआ। अगर आप सेंटेंस नेगेटिव में हो तो हमें क्या करना है? अगर नेगेटिव स्टेटमेंट्स में नो वाले, सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर रिटन एज डज नॉट और डजंट। सिंगुलर सब्जेक्ट में डज नॉट या डजंट लगा के प्लस जो मेन एक्शन वर्ड है वो हमें लगाना है बेस वर्ब। लेट्स सी द एग्जाम्पल। हेमंत सिंगुलर है तो क्या लगेगा? डजंट। हेमंत डजंट हैव अ पेन। हेमंत डजंट हैव अ पेन। शी सिंगुलर प्रोनाउन है, सो डजंट लिव इन चेन्नई। शी डजंट लिव इन चेन्नई। अब प्लूरल में क्या लगता है?
plural subjects and the pronoun I and you are written as do not और don't प्लस जो बेस वर्ब है वो लगाएंगे. डू नॉट लगाएंगे, डोंट भी लगा सकते हैं और जो मेन एक्शन वर्ड है बेस वर्ब दैट विल कम. सी दे प्लूरल इज देयर प्रोनाउन तो क्या लेगा डू नॉट. दे डू नॉट नो पूजा, वो पूजा को पहचानते नहीं है. दे डू नॉट नो पूजा. आई डोंट राइड अ बाइसिकल प्लूरल है इसलिए डोंट. आई डोंट राइड अ बाइसिकल. यू डोंट ईट ऑरेंजेस तो यू के साथ प्लूरल डोंट. यू डोंट ईट ऑरेंजेस. अब ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ. अगर हमें क्वेश्चन फॉर्म बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे. लेट्स सी. सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैव डस. सिंगुलर को हम डस से क्वेश्चन बनाएंगे. बिफोर द सब्जेक्ट के पहले हम डस लिखेंगे. व्हेन आस्किंग द क्वेश्चन तो डस लगा के हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्वेश्चन बना सकते हैं. सी डजंट शी हैव अ डॉल तो डजंट. डज क्वेश्चन हमें पूछना है, नेगेटिव नहीं लिख रहे हैं तो डज शी हैव अ बॉल. डज मोहित गो टू योर स्कूल तो हियर क्वेश्चन किससे बना सिंगुलर है तो सिंगुलर. मोहित है तो सिंगुलर. डज लगा के हम यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं. डज मोहित गो टू योर स्कूल. अगर प्लूरल होगा तो क्या आएगा. प्लूरल सब्जेक्ट एंड द प्रोनाउन आई एंड यू हैव डू बिफोर द सब्जेक्ट व्हेन आस्किंग अ क्वेश्चन. तो जब हम प्लूरल सब्जेक्ट या आई और यू यूज़ करेंगे तो आगे डू लगा के हम क्वेश्चन बनाएंगे. डू दे कम हियर ऑफन. डू क्योंकि यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन दे है इसलिए. आई है तो आई के साथ भी डू लगेगा. डू आई नो यू. यू इज़ देयर सो डू वी विल राइट डू यू लाइक टू डांस. सो this was about the question how we will frame the question. So different rules are there to understand the subject agreement verb. Now let's see an animated video so that if any confusion or any point is missing that you will understand it very nicely.